Welcome to my YouTube channel. Today we learn to make bitter gourd, how to make Karela sabji. Hi guys, this is lunchtime and do you know what is it? Do you know what is it? It is Karela or a bitter gourd. So let's make a bitter gourd ka sabji today. For that we need bitter gourd and this is called as bitter gourd because this is very bitter and generally kids don't like it, but if you make it the way that I'm going to tell you, I'm sure the kids will definitely like it. And it has got a lot of medicinal properties and it is good to taste, it is fibrous, and sugar patients should have a bitter gourd Karela in any form and shape, as in they should take its juice, they should eat a normal bitter gourd ka sabji because it has got lot of medicinal and lot of properties which is beneficial for your health. So let me show you what all ingredients are needed. The next ingredient that is needed to make a bitter gourd sabji is the onion. Definitely the onions, and we will need a good amount of onions. And along with onions, what I use to add is potatoes. Why I add potatoes, I'm not sure people do add potatoes or not, but I guess people generally don't. But I have asked my mother that why the potatoes are needed here. She says पहले के ज़माने में families बहुत बड़ी हुआ करती थी and generally not everybody used to like bitter gourds. तो उस केस में वो लोग पोटैटोज़ डालते थे सो दैट कि मदर को बहुत सारे सब्जियां ना बनानी पड़े बार बार. तो जिसको नहीं खाना है बिटर गॉर्ड वो पोटैटोज़ चूज़ करके खा सकता था, और जिसको अच्छा लगता है वो दोनों चीज़ें एंजॉय कर सकता था. सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड. नाउ आई टेल यू हाउ डज इट टेस्ट एंड हाउ डज इट कुक. Now I'll show you how to cut it. You just need to shave the head and the tail of it, the tail and the head of it, and then you just have to cut it like this in a, ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा मोटा हो, बिकॉज हम इसको फ्राई करेंगे. अगर आप पतला काट दोगे तो वो बिल्कुल सूख जाएगा, और मोटा काट दोगे तो वो बहुत टाइम लेगा उसको पकने में. सो कंसिडरेबली दिस थिकनेस हैज़ टू बी देयर. सो सिंपली इसको आप पहले नॉर्मल वॉश कर लो. इसका स्किन पील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक आप भरे हुए नहीं बना रहे हो तो इसका स्किन पील करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो सिंपली सी हाउ कच्चा आर दे कि ये बहुत आराम से कट रहे हैं, ये देखिए बहुत ही आराम से, ठीक है. सो नाउ I already had cut these bitter gourds. Now I'm going to apply some red chili, little bit of turmeric and salt to it, so that कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है और वो अपना पानी छोड़ देगा, और इस वजह से हमारे करेले कड़वे बिल्कुल नहीं बनेंगे. दिस इज टिप नंबर 1. एड सॉल्ट टू इट एंड कीप इट फॉर रेस्ट फॉर अबाउट हाफ एन आवर सो दैट कि इसका कड़वापन निकल जाए. सो वी आर गोइंग टू ऐड सॉल्ट to it, and there is nothing like that, just add a good amount of salt to it. And now you need to add the red chili. You add a little bit of red chili to it, and we will also add turmeric. So everything that we are adding over here, it all has medicinal properties, and we are going to give it a mix. No water, no oil, nothing that needs to be added over here. So we will just give it a mix, and let's use our hand to be able to mix it nicely, and then we will just keep it aside for half an hour. Hi, by the time जब तक मैंने करेलों में नमक और बाकी सारे स्पाइसेस लगा के रखे हैं ताकि उसका पानी निकल जाए, let's see what all things that are needed, what all spices that are needed to be added. So the onions, I have sliced these onions, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला, because again अगर आप पतला काट दोगे तो वो बरिस्ता बन जाएगा, और अगर आप मोटा काट दोगे तो वो बहुत मीठा मीठा फ्लेवर देगा. So very nice in an adequate slices that I have made, and I took 3 onions to it. And then potatoes, I have already sliced potatoes, and these are the slices that I did, and I have put it in a water so that इसका starch निकल जाए. And next I would like to show you the spices, that is the salt, the turmeric, the red chili. It completely depends कि आपका स्पाइस क्वोशंट कितना है. अगर आप स्पाइस ज़्यादा डालना चाहते हो तो आप स्पाइस ज़्यादा डाल सकते हो, और अगर आप कम डालना चाहते हो तो आप कम डाल सकते हो. एंड इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में धनिया पाउडर डलता है. देन इसके अंदर
आमचूर डलता है, खटाई डलती है और आमचूर ही डलता है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसके अंदर लेमन डालो, बिकॉज लेमन से इसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। तो जो हम ये करेले बनाकर हम स्टोर कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो प्रोसेस हमारा करप्ट हो जाता है। आई एम एन IT पर्सन, सो वो करप्ट हो जाता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता और हमारे करेले ख़राब हो जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसमें आमचूर डालो, विच इज़ अ ड्राई मैंगो, एंड देन इट्स अ ड्राई एंड रोस्टेड जीरा पाउडर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इसमें ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं। इफ़ यू वुड लाइक टू पुट सम ग्रीन चिलीज, यू कैन ऐड देम टू, स्लाइस इट एंड ऐड दैट। इफ आई वर टू शो यू, इट्स बीन 30 मिनट्स बाय द वॉच एंड इसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर और पानी आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा पानी वाला हो गया है। अब हम इसे स्क्वीज़ करेंगे सो दैट कि इसमें जो कड़वापन है वो निकल जाए। सो इट्स जस्ट दैट अ लिटिल बिट ऑफ स्क्वीजिंग इज नीडेड। मे भी इसमें नहीं निकले वाटर, बट एटलीस्ट इसका कड़वापन निकल चुका है। इन ऑर्डर टू स्टार्ट, वी विल light up our wok and we will add the mustard oil to it. Karelas taste best when you add mustard oil, or when you make it in mustard oil. So let's add mustard oil, and good generous amount of mustard oil is something that you need to add. Though ये कच्चा है अभी oil, but we will मेक श्योर कि हम इसे हाई फ्लेम पे गर्म करें। जब इसका कलर चेंज हो जाए इज़ व्हेन वी नीड टू ऐड आवर करेलास टू इट। कि हमारे ऑयल का कलर चेंज हो गया है, वी विल ऐड द बिटर गॉड्स टू इट इन बैचेस, बिकॉज सारा हम नहीं डाल पाएंगे। सिंस हमें फ्राई करना है तो हम बैचेस में डालेंगे। लेट मी जस्ट शो यू द फर्स्ट बैच। हम इसका फ्लेम तेज कर देंगे एंड वी विल let it to fry, which is a golden brown color. और जब तक हमारे साथ वाले गैस पे करेले फ्राई हो रहे हैं, हम जस्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस, हमने एक और कढ़ाई रखी है जिसके अंदर हम फिर से ऑयल ऐड करेंगे। और इसके अंदर जब ये ऑयल बिल्कुल पक जाएगा तो अब हम इसके अंदर अपना अनियन एंड पोटैटोज़ को फ्राई कर लेंगे अलग से, बाय एडिंग ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स। हाय, जैसे कि हमारा ऑयल गर्म हो गया, आप देख सकते हो कि इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि हमारा ऑयल हो गया और इस ऑयल ने कलर भी चेंज कर दिया है। इट इज़ द राइट टाइम टू ऐड अनियंस एंड पोटैटोज, बट आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ द फ्लेम जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। आई जस्ट स्विच्ड ऑफ द फ्लेम एंड आई एम गोइंग टू ऐड द अनियंस टू इट वन बाय वन। So I've added all the onions to it. I'll give it a mix. And I'm going to flame up it again, and then I'm going to add potatoes as well. तो सिंस मैंने पोटैटोज़ को पानी में सोक करके रखा था तो उसका स्टार्च निकल जाता है। देखो पानी कैसा कलर का हो गया, ये देखो, तो इसमें से स्टार्च निकल गया इसका, विच इज़ गुड फॉर शुगर पेशेंट्स। कि अगर आप आलू कंज्यूम कर रहे हो और इसका स्टार्च निकाल के कंज्यूम कर रहे हो, इट इज़ गुड। तो आई विल लीव इट फॉर अ वाइल, इसको ढक कर ये नॉर्मल अपने हीट में पक जाए। अभी आई एम नॉट एडिंग एनी स्पाइसेस टू इट, ओनली आई एम गोइंग टू ऐड सम सॉल्ट टू इट ताकि वो इसमें ऐड हो जाए। So I'm going to add some salt to the food, which I did, and then I'm going to give it a good stir, and then I'm sure आपको sizzling sound आ रही होगी, so I will just cover it with the lid. To see, ये जो करेले हैं इनको मैं ऑलमोस्ट अलट पलट कर रही हूँ। ये अब एक ऐसी स्टेज पे हैं कि मैं इनको बस थोड़ा सा और करूँगी और बस फिर मैं इनको निकाल दूँगी। मुझे बेसिकली मेरे करेले ऐसे पके हुए चाहिए, जस्ट दिस, लाइक दिस, जले हुए नहीं, बस ऐसे पके हुए। थोड़ा सा और फिर उसके बाद मैं इसको निकाल कर आई विल ऐड द सेकेंड बैच टू इट। तो अब आप समझे मैं आपसे क्यों कह रही थी कि हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बिकॉज अगर हम इसे बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे ना तो ये पंजाबी में इसे बोलते हैं कि ये चीड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े से ज़्यादा च्यूई हो जाएंगे और वो नहीं आपसे खाए जाएंगे। What I wanted to tell you is कि जब आप इसको, मैं एक पहला बैच निकाल चुकी हूँ, और जब आप इसको फ्राई करके निकाल देंगे ना तो जितने ये हैवी पहले थे उससे बहुत लाइटर फील करेंगे। देखिए, यू फील वेरी लाइट,
एंड नाउ मैंने इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस सब पहले दिखाए थे वो मैं सब ऐड कर चुकी हूँ अलॉन्ग विद दी ग्रीन चिलीज जो मैंने स्प्लिट करी है. एंड दिस इज़ हाउ दे लुक नाउ. एंड अभी ये बन रहे हैं बिकॉज अभी अनियंस को ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा रोस्ट होना है और पटेटोज़ को प्रॉपर कोटिंग होनी है और पटेटोज़ को प्रॉपर गलना है. सो दिस इज़ हाउ दे लुक राइट नाउ. एंड वंस जब ये दोनों चीज़ें आपस में बन जाएंगी एंड वी विल ऐड इट एंड वी विल लेट इट टू कुक विद ईच अदर सो दैट इसके फ्लेवर्स इसमें आ जाए और इसके फ्लेवर्स इसमें आ जाए. स्टे ट्यून्ड, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. तो वही हमारे पटेटोज़ एंड अनियंस ऑलमोस्ट बन चुके हैं. ओ माय गॉड, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज दिस. जब आप करेले बनाते हो ना तो ये आपकी जानू गाका वाली हालत हो जाती है. इसको देखो बहुत ही अच्छे से इसमें इसकी ग्रीन चिलीज़ भी कुक हो चुकी हैं और इसके अनियंस कैरमलाइज हो चुके हैं और पटेटोज़ इसके बहुत आराम से पक गए हैं. और यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गई थी इनिशियली एंड दैट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट स्पाइसी टू ऐड वाज सौंफ, द फेनल सीड्स. बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं. तो सिंस अगर मैं स्टार्टिंग में भूल गई थी तो जो मैंने लास्ट बैच ऑफ करेला डाला है उसके अंदर ही मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ फेनल सीड्स भी डाल दिए हैं ताकि वो उसके साथ ही भुन जाए प्रॉपरली. राइट, सो आई जस्ट शो इट टू यू. सो अब मैंने इसमें जो फेनल सीड्स मैंने आपको बताया था वो मैंने इसी में ही ऐड कर दिया और ये मेरा लास्ट बैच ऑफ करेला है. ये भी ऑलमोस्ट हो गया. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जो मैंने बाकी 2 बैचेस करे हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ. एंड जो मैंने यहाँ पे टमेटोज़ और अनियंस बनाए हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ. सो लेट मी शो इट टू यू. इट्स गोना बी वेरी हॉट सो आई विल बी डूइंग दिस and we'll add it. So now I will give it a good mix. अब इसको मिक्स के बाद जो हमारे थोड़े से स्पाइसेस जो रह गए थे वो हम ऊपर से इसमें डाल देंगे और फिर हम इसको सिम गैस पर अपनी ही हीट में सबके फ्लेवर्स आपस में मिक्स होंगे. तो सी ये हमारे करेले की सब्ज़ी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है. इट जस्ट दैट इट नीड्स टू बी ऑन इट्स सिम फ्लेम. सो अब हमें इसमें डालना है हमारा ड्राई मैंगो विच इज़ फॉर खट्टा करने के लिए. एंड देन हमने जो भुना हुआ जीरा है वो, एंड देन हमारा धनिया पाउडर, जो बाकी बचा हुआ हमारा सॉल्ट है वो, थोड़ी बहुत हमारी जो लाल मिर्च है वो, एंड थोड़ी बहुत हमारी जो टर्मरिक है वो. तो हमने इसमें ये सब कुछ डालने के बाद इसको हम कंसिडरेबली एक अच्छा सा मिक्स देंगे और हम इसे रख देंगे. अच्छा, अब आप एक चीज़ और देखिए, मैंने इसमें कितना सरसों का तेल डाला और वो सारा इसने कंज्यूम कर दिया. नाउ अब हम इसको इतना पकने देंगे कि थोड़ा थोड़ा ये अपना ऑयल छोड़ने लग जाए. सी, अदरवाइज इट इज़ ऑल रेडी टू बी कंज्यूम्ड. बट इसको अब बस थोड़ा सा हम पकने के लिए छोड़ेंगे एंड देन आई विल शो यू द फाइनल. नाउ आई विल शो यू कि ये कितना बन गया और काफ़ी देर लगी. सी, ओह माय गॉड, सारा करेले एकदम अच्छे से पक गए. ये देखो, आई कैन शो इट टू यू. सी, नाउ अब मैं इसको बहुत अच्छे से एक प्लेटिंग करती हूँ एंड आई विल शो इट टू यू. So guys, the moment of truth is here. The whole platter of my karela sabzi is ready. Now you can see the green chilies जो मैंने डाली थी उसके अंदर, caramelized onions, you can also see potatoes, and you can definitely see the karelas. And just see the kind of oil that I've put it. और बिल्कुल भी मेरी प्लेट में ऑयल नहीं है, तो आपको ऑयल बिल्कुल भी फील नहीं होगा. So let's just quickly make a plate and moment of truth. You can very well pair it with a homemade chapati, a bowl of curd, a little bit of salad, and your karela sabzi. At times, हम लोग इसको मूंग की दाल के साथ भी पेयर करते हैं. So I'll just take a generous bite and I'll show you the taste. So my favorite green chili, some karelas, some onions, and a potato, and I will just add a little bit of homemade curd. Wow, I wish कि मैं आपको ये टेस्ट शेयर कर पाती.
अमेजिंग, अमेजिंग। कोई ऑयल का टेस्ट नहीं है। प्रॉपर बैलेंस्ड स्पाइसेस, proper balanced flavor. And let me take another bite. And the curd, and then lovely. I should pat my back. Welcome to my home for this delicious करेले की भाजी, करेले की सब्जी. Bye, toodles. I'm happy that you're loving my videos. Thank you for your like, share, subscribe. Keep motivating. Thank you.